So good morning friend once again. So let's discuss the paper. Here the question number first. The process by which a particle move a region of higher concentration to lower concentration to spread uniformly is called. So क्वेश्चंस में कहा क्या गया है कि कुछ पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से मूव करते हैं किस कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ऐसा जनरली हम कहाँ देखते हैं, डिफ्यूजन के अंदर देखते हैं। और डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर मच एनर्जी टू रेगुलेट एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल डिफ्यूजन लाइक ए टी बैग, यानी जो चाय के कप में आप एक छोटा बैग डालते हैं। सो टी बैग प्लेस्ड in a cup of hot H2O will diffuse in water. Another example you can also understand that the diffusion of O2 and CO2 in your lungs. This is also example of diffusions. So moving to the question next. The force with which surface molecules of liquid are held together is called surface tensions. So what is a surface tension? Tendency of liquid surface to shrink into the minimal area possible. Here is the example, some kind of insect run on the surface of water because of surface tensions. So moving to question next. Chip cells secrete, so generally chip cells secrete enzymes. Then question number 4. If a reaction is equilibrium, रिएक्शन क्या है आपकी इक्विलिब्रियम्स में, यानी वो ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और ना ही वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रही है। द फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। अगर जो फ्री एनर्जी डेल्टा जी है वो रिएक्शन का अगर 0 है तो ऐसी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है। लेकिन खास बात और भी ध्यान रखिए, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो ऐसी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ऐसी रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। Then moving to next. Which are the non-covalent bonds responsible for high melting and boiling point of water? वाटर के जो हाई मेल्टिंग और जो उसके बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बॉन्ड्स हैं, जो नॉन कोवालेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो वो स्पेशली कौन से हैं, H bonds. Then moving to next. Which of the following is a suicide enzymes? The correct option must be cyclogenase and it is inhibited by aspirin. Then moving to next. Why is red wine particularly beneficial? तो red wine generally beneficial क्यों होती है? So let's see the option. First, it contains vitamins. No, red wines के अंदर vitamins नहीं present होते हैं. It contain proper carbohydrates. अगर red wine में carbohydrates present होते तो generally red wine यूज करने से शुगर डायबिटीज के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो जनरली कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत ही लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन 2 भी गलत है। इट कंटेन एंटीऑक्सीडेंट्स, यस ये हम कह सकते हैं क्योंकि जनरली रेड वाइन बनाने के लिए अंदर कुछ फ्रूट्स यूज किए जाते हैं, स्पेशली जो ग्रेप्स है, अंगूर हैं, उन्हें यूज किए जाते हैं। तो उनके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो ऑप्शन 3 मस्ट बी करेक्ट। Then moving to the question next. Which of the following is
not useful in identifying the amino terminal residue of proteins. Generally, here is the proteins, and this is N terminal and this is C terminal. Here the N terminal amino acid 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So the first amino acid, second amino acid, they are identified by the several chemical compounds like diacetyl chloride, fluorodinitrobenzenes and phenyl isocyanates. All three compounds are generally used in N-terminal amino acid identifications, but cyanogen bromide is used in C-terminal amino acid identifications. So the correct option must be cyanogen bromide. Then moving to the question next. Which of the following amino acid residue is likely to be found on the inside of water soluble proteins? तो वाटर का एरिया है और विद इन ए वाटर एरिया ए प्रोटीन प्रेजेंट्स. यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है, द एन टर्मिनल एंड हियर इज द सी टर्मिनल्स. सो अगर प्रोटीन को वाटर के अंदर रहना है तो उसके बाहर की तरफ पोलर एमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वाटर खुद क्या है, पोलर है. तो अगर प्रोटीन के बाहर की तरफ अगर पोलर एमाइनो एसिड हों तो वो प्रोटीन वाटर के अंदर इजीली रह सकती है. तो ऐसी प्रोटीन में जो नॉन पोलर एमाइनो एसिड होते हैं वो अंदर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है नॉन पोलर पोलर के पास नहीं रह सकते. सो यहाँ पर नॉन पोलर एमाइनो एसिड कौन से? नॉन पोलर जनरली ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, प्रोलिन्स, इस तरीके के जो अमाइनो एसिड है वो क्या है, नॉन पोलर हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन आइसोल्यूसिन्स करेक्ट है, क्योंकि ये चार्ज हैं. हिस्टिडीन भी चार्ज अमाइनो एसिड, इट इज पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड. आर्जिनिन भी पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, और एस्पार्टिक एसिड है वो, एस्पार्जिन भी क्या है, एक चार्ज अमाइनो एसिड है. तो ये पोलर अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं और ये प्रोटीन के इनसाइड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं. देन मूविंग टू नेक्स्ट. द रेजिस्टेंस experienced by one layer of a liquid in moving our another layer is called viscosity. This is the straightforward answer question. So moving to next question number 11. Which of the following is true? Apoenzymes and coenzymes. It's holoenzymes? No. Apoenzymes plus coenzymes is equal to holoenzymes. This is the correct answer. Then moving to the next. Which of the following is important reactive group of glutathione in its role as an antioxidant? जो ग्लूटाथायोन्स है उसके पास में एक एसएच यानी एक थायोल ग्रुप से होता है, वो इसका एक रिएक्टिव सेंटर होता है. तो सल्फाहाइड्रल ग्रुप भी कह सकते हैं या आप इसे थायोल ग्रुप्स भी कह सकते हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following is not a dietary antioxidant? Generally, vitamin K है, is not a dietary antioxidant. Then moving to the question number 14. If an average molecular weight of one amino acid is 110, the molecular weight of a peptide made up 10 amino acid is expected to be. तो देखिए यहाँ पर समझिए, एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 110 है. तो 10 का कितना होगा,
10 अमाइनो एसिड का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो कितना आ जाएगा, 1100। तो टोटल जो 10 अमाइनो एसिड है उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 1100। अब आपको पता है कि 10 अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हैं, तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कितने बने हैं, 9 पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं। और आपको पता है कि एक पेप्टाइड बॉन्ड बनने पर एक H2O मॉलिक्यूल्स निकलता है, यानी 9 × 18, क्योंकि H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18। सो 162, यानी आपको 1100 में से 162 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो कितने बचेंगे, 938। क्योंकि आप माइनस करेंगे ना यहाँ पे, जैसे सपोज 10 अमाइनो एसिड जुड़े, तो 10 अमाइनो एसिड जुड़े तो एक का वेट अगर 10 है तो 10 का कितना हो गया, 1100। अब जो जुड़े हैं उनमें एक एक H2O मॉलिक्यूल्स निकला भी तो है, तो टोटल 10 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 9 बॉन्ड बनेंगे। अब हर एक बॉन्ड में एक H2O निकला है तो आपको H2O का माइनस करना पड़ेगा। सो मूविंग टू नेक्स्ट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ बीटा कैरोटीन्स। तो एक बीटा कैरोटीन्स के मॉलिक्यूल से 2 विटामिन ए का फॉर्मेशन होता है। Then moving to next, in a photosynthesis and cellular respiration process, the catalyst cytochrome oxidase utilize। तो जनरली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को काम करने के लिए कॉपर और फेरसाइन का रिक्वायरमेंट होता है। Then moving to next, who gave the name of nucleic acid? ये तो आपको शायद याद ही होगा, न्यूक्लिक एसिड किसने दिया था, ऑल्टमान ने। Then moving to question 18, the offspring obtain how much genes from father? चाहे फादर हो चाहे मदर हो, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन कितना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, 50%। So here the option 50%. Then a child with IQ 140 belong to which category? जनरली जो IQ होता है वो हमारा 80 से 100 होता है, और इस 80 से 100 या 110 बोल सकते हैं, इसे एक एवरेज इंटेलिजेंस में रखा जाता है कि हम कैसे हैं, एक एवरेज इंटेलिजेंस पर्सन है। जनरली जो पर्सन होते हैं उनका आईक्यू यही होता है, लेकिन हम आइंस्टीन का आईक्यू देखते हैं तो आइंस्टीन का जो आईक्यू है वो आपकी 160 के करीब है। तो 160 के करीब है, इट मीन्स यहाँ पर बहुत ही मोर इंटेलिजेंस, एक जीनियस वाली कैटेगरी आती है। तो आईक्यू अगर 140 के आसपास बिलोंग कर रहा है तो वो क्या है, एक जीनियस की कैटेगरी में आता है। देन इन विच एरा लाइफ वॉज इवॉल्व्ड? तो लाइफ यानी ज्योग्राफी के बहुत सारे एरा हैं, मेसोजोइक एरा हैं, सीनोजोइक्स हैं, तो कौन सा एरा है जहाँ पर लाइफ का इवोल्यूशन हुआ? तो प्रोकैम्ब्रियन एक ऐसा एरा है जहाँ पर लाइफ इवॉल्व हुई थी। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास इंसेक्टा। यहाँ पर आप क्लास इंसेक्टा की एक खास बात याद रखिए कि क्लास इंसेक्टा में 2 तो विंग होते हैं, 2 विंग एंड 3 लेग। ये इंसेक्टा का खास कैरेक्टर है। तो देखिए यहाँ पे 2 पेयर ऑफ लेग, नो गलत है। 3 पेयर ऑफ लेग्स, हाँ मान सकते हैं। नीचे भी देख लेते हैं, 4 पेयर ऑफ लेग्स, नो गलत है। 5 पेयर ऑफ लेग्स, नो गलत है। तो यहाँ पर याद रखिए आप 2 पेयर होते हैं विंग और 3 पेयर क्या होते हैं, लेग होते हैं। इंसेक्टा का ये मेन कैरेक्टर है, जो ऑर्थोपोड्स एनिमल्स। देन स्लीपिंग सिकनेस अकर ड्यू टू, तो मेनली एक प्रोटोजोन्स है और
ट्रिपेनोसोमा, इसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस डिजीज क्रिएट होता है। डिजीज तो आप पर्टिकुलरली एक लिस्ट बना लीजिए, जैसे स्लीपिंग सिकनेस है ट्रिपेनोसोमा से होता है, इसी तरीके से कुछ अदर डिजीज हैं उनकी भी आप लिस्ट प्रिपेयर करिए। देन मूविंग टू नेक्स्ट। सो हियर द सिल्वर फिश, नाम से आपको थोड़ा सा अलग लगता होगा सिल्वर फिश, लेकिन ए सिल्वर फिश इज ए स्मॉल इंसेक्ट, प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट इन द ऑर्डर Zygentoma. Its common name derived from animal's silvery light gray color combined with a fish-like appearance of its moment. So the silverfish is belong to the insects. एक छोटा इंसेक्ट है, प्रिमिटिव इंसेक्ट आप इसको बोल सकते हैं, और जनरली एक विंगलेस इंसेक्ट है, विंग नहीं होते हैं, और इसका सिल्वर लाइट ग्रे कलर है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, सिल्वर फिश कहा जाता है। देन हाइड्रा मूव्स द फास्ट स्पीड बाय somersaulting. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 25. ऑन विच सेगमेंट ऑफ द बॉडी द अर्थवर्म पोजेज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी आपको पता है अर्थवर्म के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, तो कौन से सेगमेंट्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? सेगमेंट जो 10 है उसके अंदर जनरली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, टेंडेंस कनेक्ट्स। तो सबसे पहले तो देखिए टेंडेंस होते क्या है। तो टेंडेंस इट्स ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टेंडेंस आर कोलाजन्स, यानी किससे बने होते हैं टेंडेंस? कोलाजन से बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग एंड थिन पार्ट इनसाइड योर बॉडी डेट जॉइन मसल एंड बोन। तो ये किसको ज्वाइन करते हैं? मसल और बोन को क्या करते हैं? ज्वाइंट करते हैं सॉरी। सो ऑप्शन 2 मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनी एंजाइम? देखिए माल्टेज बिल्कुल एंजाइम है, लाइपेज भी एंजाइम है, ये दो नाम तो आपने सुनी है। ट्रिप्सिन आपको पता है कट करने का काम करता है, आर्जिन जैसे कोई प्रोटीन है और प्रोटीन में यहाँ पे कोई आर्जिनिन और लाइसिन अमाइनो एसिड है, तो वहाँ से ट्रिप्सिन क्या कर देता है? कट कर देता है, तो ये भी एक एंजाइम की तरह काम करता है। लेकिन एमाइलोज एक एंजाइम नहीं है, तो ऑप्शन 2 यहाँ क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। सॉरी, ऑप्शन जो 2 है वो सही है यहाँ पर। तो एमाइलोज एक स्टार्च का यूनिट है, नॉट ए एंजाइम। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. Most of the members of vitamin B complex primarily used as, जनरली जो B ग्रुप के विटामिन हैं, जो वाटर सोल्यूबल्स विटामिन हैं, जिसमें विटामिन B6 हैं, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है, ये सारी की सारी जो विटामिन हैं, मोस्ट ऑफ विटामिन्स एंजाइम के साथ मिलकर काम करती है, क्योंकि एंजाइम अकेला काम नहीं कर सकता है। एंजाइम के साथ में उसे काम करने के लिए या तो किसी आइंस यानी को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर उसे कुछ को एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, और मोस्ट ऑफ को एंजाइम्स क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं। ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर मस्ट बी कोएंजाइम्स। देन मूविंग टू नेक्स्ट, क्लोराइड शिफ्ट इन ब्लड इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच गैस? जनरली जो क्लोराइड शिफ्ट आपकी बॉडी में चलती है वो CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए एसेंशियल है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, ट्राइकैप्सूड वालो एग्जिस्ट बिटवीन। तो ट्राइकैप्सूड वालो है वो जनरली करती क्या है, उसका काम क्या है? जैसे हार्ट के अंदर हमारे 4 चेंबर होते हैं, ये एक हार्ट है, ये आपका राइट एट्रियम है, तो ब्लड कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम में आने के बाद ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है,
अब राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड यहाँ पर आ गया है, बहुत सारा ब्लड आ गया है। अब ये ब्लड वापिस ना चला जाए, इसे रोकने के लिए यहाँ पर एक वाल्व पाई जाती है और उस वाल्व को क्या कहते हैं, ट्राइकैप्सिड वाल्व। यहाँ पर 3-4 वाल्व हैं, आप सभी के नाम याद कर लें कहाँ पे कौन सी वाल्व पाई जाती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सुनाओ, थैंक यू।